so delighted that on Sunday morning, everybody have come here to learn something. That shows that you are really inclined to learn and you really want to grow in your life. As you all know, there are 6 basic amenities or 6 basic essential elements for everyone in their life. Number 1 is certainty. You want to learn something, you want to be secure in your life. Second is you want some variety, you want some change in your life. That is why you are here today. The third one is, as you are processing in your life, progressing in your life, you want to have some recognition in your life. Like as our coach has already got. Alhamdulillah. And the next thing is, you want love and connection in your life. So you cannot live with love and connection. Love with your loved ones and connection with the networking with people in the society and your community. The other important factor for which we are here today is everybody wants in their life that they want to grow. Yes? Yes. Is there anyone sitting here who does not want to grow in their life? Whether you like it or not, it's a natural phenomenon. It's a natural process. Everybody wants the growth in their life. And how this factor comes into picture is, as Allah says in the Quran, if you talk about Surah Asr, Allah says, wal asr, innal insana lafi khusr, illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah says, humanity is at loss, whole humanity. And He says, कसम में समाने की इंसान सारे असादे में किन लोगों के इल्ला लज़ीना आमनू, सिर्फ उन लोगों के जिन्होंने ईमान लाया, वामिलुस सालिहात, नेक अमल किए, वतवासौ बिल हक़, हक़ की पैरवी की, वतवासौ बिस सब्र। जैसे ही हमको पता चलता है कि ये 4 एलिमेंट्स हमारे बेसिक नेसेसिटीज हैं हमारे जिंदगी के लिए, जब जाके याद खत्म होती है पेशेंस पे, सब्र पे। जैसे ही आप पेशेंस की बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेप आपकी लाइफ में आ जाता है कि आपको जिंदगी में ग्रो होना ही है. You have to grow your life. But the most interesting thing for today is, you might know, like who am I first, then I will talk about our trainer today. Basically, I'm a life coach, I'm a soft skills trainer, a life skills trainer, a memory trainer, internationally certified NLP practitioner from American NLP, I'm a motivational speaker, I'm a counselor. And I got a chance to participate in largest number of counseling sessions, and this event got recorded in India Book of Records. And in the month of March, I got a chance to participate in largest number of counseling sessions for college students, and this event got recorded in Asia Book of Records. And Alhamdulillah, I have been given as a title as Sensational Star, and I have been awarded as an outstanding trainer. So I really feel proud. Alhamdulillah, Allah has given me all these things, but these things could only happen because of Allah's blessings and whatever my parents have helped me and whatever effort my coaches and the trainers have given me. While I was attending a training program in Business Lead Connect somewhere 2 years back, I got a chance to meet with a very interesting person, and he is none other than Mr. Amir Qazi. We were together sitting in the training program, and it so happened that I was asked to give some introduction about what the training is all about. So I came there. It was a recording session going on. I introduced the audience, talked about the trainers and everyone. And he was sitting just next to me. When we got a short break, he was like, brother, who are you? I'm seeing you for the first time. We didn't see each other. We didn't meet. Very nice program has been organized. So this talk was going on. After this introduction got started, he was telling me, we need to do something for our society. That was the thing that touched me. Because in today's world, everyone are behind their own goals. Everyone are running for their own cause. Everybody is running for their own life. Who is thinking in today's world of giving something to the community? And that is the 6th element I talk about, that is the contribution to the society. You can only contribute to the society when you grow. Unless and until you grow, you cannot expect that you can contribute for someone. Am I right? Yes. Thank you so much. So with this, Amir Bhai has decided that he would take an initiative in his life. And I really would like to take this opportunity to congratulate Amir Bhai for this setup of the institute which he has started here with the name Khans. www.khans.in. He started this with a vision, saying that he really wants to empower our youth. He really wants to empower our community. He really wants to contribute for the society. I don't know, when I met him 2 years back, that was a vision he was carrying in his mind. I could see that thing coming into reality today. Alhamdulillah. Can we have a round of applause for Amir Bhai?
thinking about the community, not just thinking about themselves. And when you start thinking about somebody, when you start thinking about contributing for some cause, when you think of contributing for our community and society, Allah subhanahu wa ta'ala creates some pathways, creates some ways wherein He also places the people on the same track who comes and interact with you. The same thing has happened when we talk about our today's speaker and trainer and coach, which I would like to introduce a little bit later, Mr. Sayyid Kaleem. Amir Bhai got an interaction with Kaleem Bhai, Mr. Kaleem, that he is a big personality. He has a lot of experience in trainings and all. He has come back now to India. So when he came, I don't know how this interaction happened between both of them. He got connected to Amir Bhai and then said, let's have a program. Because Mr. Kaleem don't want to just, time pass here, coming in vacation time and then going back. He has a thought that, why not let me contribute again for the society? Why not let me just do something for our people? See, Amir Bhai thought of one thing, Mr. Kaleem thought of one thing. How Allah has connected these dots. You can get the point. When you have a right intention, Allah subhanahu wa ta'ala creates a way, a pathway where things fall in place. That is how this program came into existence. And one fine day morning, I was just sitting in my on my laptop, I was just working. Suddenly I got a message from one of my coach, Mr. Saladullah Khan. He's a very popular international trainer and coach. Just with the message saying this, from John Maxwell, 15 invaluable laws of growth. I tell you honestly, I've been trained by more than 25 trainers, lot of experience of 10 years of experience and all. And I tell you, I never got a chance in my life to learn something like this. That time I felt that this is something which I really need to know. This is something which I really need to acquire in my life. Because I have always used to have thoughts in my mind. If I want to grow, let me grow. Then I thank Allah subhanahu wa ta'ala that this is the reason that that message came to me. And then I contacted Amir Bhai. Then Amir Bhai said, yes, this is a very good program where we have got a very good trainer coming in. Now, if you talk about Mr. Sayyid Kaleem, he is an international trainer. He has been almost, with 10 years of experience. It's a very good experience he has. Not only that, if you talk about his credentials, he is an MBA. He has done his certification courses in NLP. He is a certified John Maxwell trainer. He is a certified author, a speaker, and a coach. Not only that, he is also a certified trainer in transactional analysis. Now, with all the feathers in his cap, he has a mission. Wherever he goes does a lot of trainings, and he does a lot of trainings with some enthusiasm and energy to help the participants to gain something in his life. And for your information, he has done a lot of trainings. He has been to KSA, he has been in UAE, he was in UK, and Alhamdulillah, he has done a lot of trainings in India. And getting this qualification, getting the certification from John Maxwell, it's an international training organization which helps the people. If you want to become a coach or a speaker or a trainer, they're going to help. And for your information, I really don't know the number, but we have hardly very few people in India who are John Maxwell certified speakers and coaches. Maybe Mr. Kaleem will let you know what's the number and all. He has done a lot of trainings on people to help them know the vision, the mission. He has done a lot of training to help the people. Where people have a lot of dreams and they want to turn into the reality. Dream क्या है? अक्सर लोग ख्वाब तो देखते रहते हैं. ख्वाब वो नहीं होते जो आप अक्सर देखा करते हैं. ख्वाब तो वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते. ये तो हमको मालूम है, लेकिन कैसे सुना वो कलीम भाई बताएंगे. He would let us know more and more things. This is a saying. वक्त है कि इंसान को जिंदगी में वक्त बहुत कुछ मिल जाता करने के लिए, लेकिन अपने आप को ग्रो करना है, अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए कभी अगर टाइम मिला तो वो है आज का टाइम. This is the time we have got. Now, maybe in future, maybe when we go, everybody might have seen this advertisement page, right? The PDF what you have got. The most interesting thing that really touches me is there is a seed in that advertisement. You can see that, right? The seed slowly germinates and it forms a small plant of tree, whatever it may be. This is where it's lacking in our life. We are like seeds. Now let's see how Mr. Kaleem, with his international experience, with his knowledge and all, will help us. We are like dormant seeds, I would say. Seed to hai, lekin dormancy mein hai. We have to break that shell, break that covering, and then come out. And that is what we learn. And with this, the share of Akbar comes in mind. मिटा दे अपनी हस्ती
अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है. Now, with this big vision, Mr. Khalil has taken this as a responsibility. It's not only just he himself has to do, but he's helping the people across the world, different countries, different places, different organizations, to help them empower themselves. So, with this vision, he is now here. So, I request Mr. Khalil to please come here and take the session. But before that, if you want to welcome someone who is someone special for you, how do you welcome them? So I have a typical, not just a clapping, I have a typical style. It should rain from the sky. You should feel the sound of how it rains. Then when in the rain someone comes. That is a very typical experience. Would you like to experience that? Yes. So may I request, can I have a small activity? When I ask you to clap, start with one finger. When I show you two fingers, then two fingers, then three. Finally, when you do a full clap, then Mr. Khalil will come here to start the session. Is it okay for all of you? Okay. And this clapping is not to encourage or appreciate him, this is for you only. This will activate all your senses to get maximum learning from this training. Yes? Yes. Can you please start with one finger first? You should feel like it should rain. Two fingers. Three fingers. Four. Five. Before I start, I just want to have a quick introduction from my right hand side. Your name and what do you do? I have heard about you, mashallah, very much. So let us start from here. Yeah. Again, one more time. Okay, fine. What's your name and what do you do? Yeah, my name is Shahab. Basically, I'm a pharmacist. Then become a trainer. Right. Thank you, Mr. Shah. My name is Risa. My name is Risa Abdullah. I'm a management consultant and a trainer. I've been in the industry for 19 years and I've trained more than 22,000 training. So I've been across the board, starting from student to PhD, philosopher, and all kinds of things. Thank you for coming, Mr. Shah. Myself, Mohammad Mushtaq Ahmed. I'm a mechanical engineer. I have around 18 years of work experience, out of which 7 years is work. Very good. And I'm here to start my own business. Thank you, Mr. Shah. Thank you. My name is Umar Rahman and I'm an undergraduate from Thank you, Mr. Shah. My name is Abdul Aziz Siddiqui. I have completed my 10th and recently I have doing CE in the CA. Thank you, Abdul Aziz. myself Saif Suresh. I'm currently pursuing my engineering this in information technology and I heard about you from Amir Intel, so I was Thanks for coming. I'm glad to come here. Thank you, sir. I said, I'm pursuing BTech in CSE right now in Acid Engineering College. Thank you, Naval. I'm Martin Asifullah Khan. I'm the Master of Business Administration from Pharmaceutical Engineering. Thank you for Thank you. Myself, Mohammad Khan Asif. Recently, I finished intermediate and I'm waiting for medical counseling. Thank you, Fazal. Myself, Israel Yasir. Recently, I completed intermediate. Thanks for coming here. Myself, Abdullah, I'm a pharmacist. Thank you for coming. Myself, Abdullah Siddiqui. I'm an accountant. Thank you, sir. Myself, Abdul Rafi. I just completed my intermediate. Thank you. I am Muhammad Asad. I am training recruitments and use. Mohammed Asad. Thank you, sir. My name is Muhammad Mujahid. Basically, I'm an architect. I want to be Thank you, Mr. Mujahid. Sayyid Mahmudullah, Haftul Trainer College. Thank you for coming, Mr. Mujahid. behind our schedule, which is 26 minutes, but it is okay. Okay, since it is Hyderabad, Before I start, I would like to thank and congratulate you for coming on a Sunday evening, Sunday morning, and leaving your family and your friends, and most importantly, the sleep which you have usually on Sunday. Quickly, let us jump in onto the subject. How many of you heard about John Maxwell? Okay, very good, thank you. John Maxwell is an international leader, speaker, author, coach. He had written a lot of books.
he is being called as father of leadership because of his work in terms of leadership. Till date, no one has done that much research, no one has done written that many books as he has written in leadership and personality growth. Having said that, alright, okay. Having said that, for John Maxwell, he is been in leadership and training and development for more than 40 years. Now we are here to learn some laws, that is 15 laws of invaluable laws of growth. So quickly, what do you mean by invaluable? Can you close the light, please? Yeah, sure. What do you mean by invaluable? I'm just quickly jumping because we have to cover a lot. Invaluable. But I think more participation. उर्दू में बोलूँ थोड़ा सा हैदराबादी टच. ये क्लास में मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूँ. ये कॉर्पोरेट ट्रेनिंग मैं आपका मैनेजर हूँ. मैनेजर अगर रहा तो ये कहेंगे यार अगर नहीं बोलेंगे नहीं करेंगे कुछ गलत बोल देंगे तो प्रमोशन रुक जाएगा, इंक्रीमेंट रुक जाएगा. अगर क्लास में इसलिए नहीं बोलते क्योंकि गलत बोले तो इंटरनल्स में बाद में एग्जाम में टीचर सकता है. ठीक है, तो आई एम नॉट इंस्ट्रक्टर rather than a manager. So let us have a friendly discussion. कोई चीज़ गलत नहीं है, अपना अपना ओपिनियन. कोई कहता है कि जो आज बाहर का मौसम अच्छा है, तो कहता है यार बाहर का मौसम क्या आप बुरी नहीं क्योंकि उससे कपड़े सुखा. ठीक है, तो हर किसी का एक एक जो अपना ओपिनियन है, ओपिनियन के पीछे रीजंस, एक्सपीरियंसेस. ठीक है, तो हम जो है ना the more we participate, the more we learn. So what do you mean by invaluable? थोड़ा सा सुस्ती आराम में कुछ चाहिए क्या सब? चाहे तुम्हारा वो लोग सो रहे हैं. जी सही है. जो जागे हैं माशाल्लाह तो वो एक शेर कहता हूँ मैं. इसके बाद जो है ना आप लोगों को रखता हूँ. तो कहते हैं कि मंजिलें मिल ही जाएंगी भटकते ही सही. मंजिलें मिल ही जाएंगी भटकते ही सही. गुमराह तो वो है जो घर से निकले. आज आपका ये सेशन में आना, ठीक है, यहाँ से कुछ और जिंदगी का डायरेक्शन मिलना या आपके साथ में जो बैठे उनसे कोप अप होना. जैसा अभी आप आपको बता रहे थे कि जो ना आमिर साहब से जो एक सेशन में मिला मुलाकात है और मेरी भी आमिर साहब से होना ये दूसरी मुलाकात है. हम लोग फेसबुक के फ्रेंड्स हैं और कॉमन फ्रेंड होना फिर. तो the more you participate, the more you learn. So what do you mean by invaluable? What is that? Very valuable. Very valuable. वो चीज जिसकी कोई कीमत ना हो. ठीक है, जिसकी कोई हर चीज की दुनिया में कीमत है, right? Everything has a price tag. When you say invaluable, that means it doesn't have value. We cannot put a value to it. So that is what we are learning. 15 invaluable laws. अभी दूसरी बात जो आ गई वो है laws की. What do you mean by law? कानून. ये तो ठीक है यार, ये तो मीनिंग है यार. Can I say Darwin's law of evolution? Why I cannot say Darwin's law of evolution? He said that man has come from monkey and it has been studied and it has been taught in our classes, right? But why we can't say Darwin's law of evolution? Because it has been proven over a period of time that there are many other hypotheses or theories. Right, okay. Because it is a hypothesis. Why? Because Darwin hasn't proven that man has come from monkey. वो उसकी थ्योरी है, दिमाग की उपज है. Anything that is tested and proven, it is a law. Can we call Newton's law of gravity? Yes. Why? Because it is being tested and proven. What if
if I say that I do not believe Newton and I jump from the 50th floor, what will happen? You have amazing effects. Exactly, you will have amazing results. So you will face consequences. Even if you believe it or not, it works. Irrespective of caste, creed, gender, religion, and country. A person going in Nigeria and jumping, although they will not be 50th floor from Nigeria, if he jumps from a cliff, disbelieving gravity, what will happen? He will face consequences. So anything that is tested and proven is called a law. So what we are studying here is not theory, कोई आके लिखा, रात में सोया, सपने में कुछ देखा, और सुबह उठ के देख लिया, ये ऐसा नहीं. ये जो laws है, this is tested and proven. Anyone, irrespective of caste, creed, culture, gender, religion, country, anything, कोई ये नहीं कह सकता ये laws जो है ना अमेरिका में लिखे गए और वहाँ पे अप्लाई हुए, ये हर जगह पे अप्लाई होने वाले, irrespective of anything. अच्छा, अगर ये लॉस को अगर हम नहीं फॉलो करें तो क्या होगा? कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. सो व्हाट वी आर लर्निंग टुडे इज लॉस ऑफ ग्रोथ. ठीक है, नॉट थ्योरी ऑफ ग्रोथ, ओके, बट लॉस ऑफ ग्रोथ. ठीक है सर. अभी इसके जो है ना जॉन मैक्सवेल की खास बात ये है कि ये तीन बेसिक एल डबल लेटर एल से लंदन कहते हैं, एल से लीमा कहते हैं. The L, 3L पे काम करता है. क्या 3L है? Number one, he says, first learn the laws. आप पहले ये कानून सीख लेते, ठीक है. फिर दूसरा जो कहता है live, L-I-V-E, live the laws. ठीक है, ये laws जो है ना जिए, अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करें, जिए. ठीक है, खाली सीख लेंगे. अच्छा, ग्रेविटी है पता है, सीख लिया, बट उसके बाद हम जिंदगी में इम्प्लीमेंट करते ना. ठीक है, ऐसा नहीं है हाँ सीख लिया फिर उसके बाद जो है ना हम भी बोलते हैं, दूसरों को भी बताते. तीसरा जो आस्पेक्ट है वो है लीड द लॉस, L-E-A-D, लीड. हम सीखने के बाद हम दूसरों को सिखाएं, दूसरों तक पहुंचाएं. ये तीन बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ आज का वर्कशॉप है या बेसिक फिलॉसफी ऑफ John Maxwell. What is that? 3 L's? Learn, live, and lead. Okay. What we are learning today? Communication skills, right? No. Is it class, sir? Invaluable loss. Huh? Invaluable loss. Communication skills नहीं पढ़े ना? सीधे communication skills का सेक्शन है ना? I am clear with it. This is not communication. Then what we are here for? Life skills. It's obvious it's communication. I think a point of clarification is the brochure was. No. I understand. Just give. He was What checking. we are here to learn today. Loss of growth. Very good. That is what I am asking. We are here to learn lots of. मैं देखा तो होशियार है या सो गए सो. कम्युनिकेशन स्किल बताता हूँ, कोई बोलेंगे हाँ यार चलो कम्युनिकेशन स्किल ठीक है. So yeah, what we are here to learn today, 15 laws of growth. अच्छा, अभी जो है ना ये बोले आप, what do you mean by growth? Development new time. Development, okay, और क्या? और Going from one situation to other situation. going from one side. Okay, इसको simply define करता हूँ मैं. अगर कोई dead body, there is a dead body, okay, and there is a man lying on the bed, both on the same time. How do you differentiate between someone who is alive and someone who is died? How do you differentiate? आप सांस आने Lifestyle, lifestyle. जी. We'll go back to the first question. How do you define growth? Right. Growth is going from within. Right, okay. Growth is growing from within. Okay. How do you differentiate someone who is alive and someone who is died? Simple answer. Change. Actions. There's no movement. Action.
मूवमेंट, कोमा में है, जिंदा है वो। No, the person who's dead has no life. I mean, he has no movement. So, नहीं, चलो अगर एक मर गया आदमी, दूसरा आदमी कोमा में है, इसके पास मूवमेंट नहीं है, मतलब वो जिंदा है, उसको मर गया नहीं बोल सकते। If he's breathing, जी रेस्पॉन्स, चलो अगर जो है ना जिसम के कोई ऐसे हिस्से, जी हार्ट बीट, दैट इज आल्सो कॉमन, समथिंग व्हिच Life has mobility, whereas dead person can't move. फिर वही मोबिलिटी का सबसे बेहतरीन अगर आंसर आप बोले तो जिंदा आदमी बढ़ता जाता है, ग्रो होता जाता है, बादल पे डिगे हुए। छोटा आदमी दिखे हुए। अगर आप जिंदगी में बढ़ नहीं रहे हैं, ग्रो नहीं हो रहे हैं, तो आप क्या करें? डाई। इफ यू आर नॉट ग्रोइंग दैट मींस यू आर डाई। यही फर्क है ना। अगर आप कोमा में भी देखें, आप एक्सीडेंट हो गया, सारा जिस्म का सब चीज खराब है, बट the tissues are growing, the hairs are growing, everything is growing. So the only difference between someone who is died and someone who is alive is growth. हदीस पाक का मतलब है, कोई बोलते हैं कि हजरत अली का भी कौल है, बहरहाल से मुझे कोई उन्होंने क्या कहा कि हलाक है वो शख्स, क्या है? हलाक है वो शख्स जिसका आज का दिन कल से बेहतर हो। हलाक है वो शख्स जिसका आज का दिन कल से बेहतर हो, हर चीज में, नॉट वन बट इन एवरी एस्पेक्ट। लेट अस से योर फिजिकल, योर फाइनेंशियल, योर स्पिरिचुअल, योर रिलेशनल, ठीक है, आपका प्रोफेशनल, हर चीज में आप थोड़ा सा जो है ना अपने आप को बदलो। What is, how many of you know compound effect? Compound effect. Compound effect क्या होगा कि कोई एक चीज जो आप अच्छा इसको समझाने के लिए बेहतरीन इंजीनियर को ना, अगर मैं आपको एक रुपया दूं, अच्छा दूसरे इंजीनियर हाथ नीचे कर दिया, अरे नहीं ये सवाल आ रहा है, नहीं मैं मेडिसिन में, ठीक है, अगर मैं आपको 1 रुपया दूं और उसे ये कहूं कि हर दिन इसे डबल करें, तो महीने के एंड में कितना होगा? If you double it like 2 crores, 4 crores, अंदाजा अगर दूसरों का भी इंजीनियर उसको करके ये कैलकुलेटर सबके पास है, एक रुपया मैं आपको दूं और हर दिन उसे डबल करने के लिए कहूं, तो महीने के आखिर में कितना होगा? 2 into 30 days. $5 लाख से ज्यादा। आज 1 दिया, कल 2 हुए, 2 के 4 हुए, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64, 64 के 128, ऐसे करते करते you will get more than 5 lakhs. That is what is called compound effect. You start something which is called ice ball effect भी कहते हैं उसे, तो जो बर्फानी तोड़ा जिसे कहते हैं, कि अगर आप कोई एक चीज छोटी आज से शुरू करें अपनी ग्रोथ के लिए, वो बढ़ते 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 इतनी बढ़ जाएगी कि you will be amazed. So this is just a basic of growth. Any questions before we start, or any specific reason you are here to learn? Quick listen. कोई सवाल है before we start the main subject, और कोई एक specific reason और कुछ डाउट, कुछ क्वेश्चन? कितने लोग पढ़े सब ये 15 लॉस के बारे में कुछ आने से पहले? सिर्फ एक ही अलमिया है सब, और बड़ा अलमिया कि जहाँ जा रहे 8 घंटे जा रहे, शायद मैं बेवकूफ हूँ जो आप लोगों को बुला लिया, ट्रेनर अच्छा है नहीं, क्या कंटेंट पढ़ रहे हैं आप अपनी जिंदगी के 8 घंटे दे रहे, दैट इज मोस्ट वैल्यूबल। वो आते वापस नहीं आते। शायद ये लॉस आपके लिए नहीं होंगे, मैं नहीं कहता आपके लिए नहीं है, आपके लिए है, मगर फिर भी हम जो है ना बस वो क्या कहते हैं, वो पाकिस्तानी लोग ज़्यादा कहते हैं
चली जा रही है बस खुदा के सहारे, कहाँ जा रही है पता नहीं। जिंदगी कहाँ तो चली जा रही है, बस आए हैं तो जाना है, बस तो जाना है, चली जा रही है। सो प्लीज नेक्स्ट टाइम एक छोटा सा शर्ट लेने के लिए हम 4 लोग से पूछते हैं, आप 8 घंटे डाले जिंदगी के, तो यू शुड हैव सम बैकग्राउंड ऑफ मी और द ट्रेनर and the content visual, so that when you come with it, you will get more आप questions पूछ सकते और फिक्र कर सकते। एक जॉन मैक्सवेल की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, वो कहता है गुड लीडर्स आस्क ग्रेट लीडर्स आस्क गुड क्वेश्चन। अगर आपके पास अच्छा सवाल नहीं है ना, तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी है, क्योंकि जिंदगी में जितने बड़े सारे चीजें जो इजाजत हैं वो सवाल की बुनियाद पे छूट, भाई आसमान से सेब क्यों ऊपर से नीचे क्यों गिर रहा, बहुत बड़ी इजाजत है, ठीक है, अगर वो सेब उठा के खा लेता तो एनी हाउ। सो स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ नेक्स्ट प्लीज, जैसा कि जो अपना एक अच्छे ऑथर ने कहा, वी आर नॉट वंडरिंग जनरलिटी, हम बस आए और खाए और जो है ना पी लिए और जो है ना क्या कुछ भी ऐसे नहीं, वी आर मीनिंगफुल एंड specific. Whatever our actions, whatever we do, that has to have a meaning. नहीं तो फिर जो है ना, अल्लाह माफ करे, आपके लिए नहीं, मैं आम बात बोल रहा हूँ कि फिर घोड़ा है, इधर की घास अच्छी दिखी इधर खा लिया, उधर की घास अच्छी दिखी उधर खा लिया, फिर कहाँ जा रहा है पता नहीं, बस चले जा रहे, कोई मकसद है ना कोई जिंदगी। Anyhow, so 50 laws of growth. Any questions? Anything which you like to clarify? Yes, yes sir. If I may ask a question, just to start. Yeah. Get the ball rolling. What is the importance of practical application versus only learning theory? Since you've talked about invaluable aspects of growth, what is it? Because in India, a lot of people just theorize. Right. There's very little practical application to explain that. Right. Very good. As I said, okay, these laws are live and learn and live. Sorry, learn, live and live. What we learn from here, okay, the workbook it is made in such a way that it is blank. Okay, I would have given you the written one, which I will give you written, but not now. Why? Because I want you to learn. First to learn, and then try to implement that in our daily life, every day. How I can implement that? So, as of now, it is blank, and slowly and steadily, when you practice this, then you will learn. As you said, yes, India is a more theoretical country, wherein there are a lot of theories has been developed. Now, अभी अगर किसी को हीरा दे दे, ठीक है, तो अभी वो हीरा देने वाले का काम ये है कि वो हीरा दे, अभी उसको सजा के रखे, अभी उसको तोड़ के छोटे छोटे हीरे बना के बेचे और अपनी जिंदगी में ये संभव है, ठीक है। आप अपनी जिंदगी के 8 घंटे अपने फैमिली को, दोस्त अहबाब रिश्तेदार, शायद कल रात में आप दावत में होंगे, सुबह जल्दी उठ के आए, और जब आप कुर्बानी देंगे ना, ठीक है, तो इसको और आगे लेके जाएं। ये थ्योरी नहीं, दिस लॉज आर नॉट थ्योरी, दिस मोर प्रैक्टिकल, ठीक है सर, बात समझ में, ठीक है। द मोर यू इम्प्लीमेंट दिस लॉज इन योर लाइफ, ओके, द मोर यू विल लर्न। हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट, अगर आप पूछें, ठीक है, तो फिर इसके लिए कोई हार्ड फास्ट रूल ना कोई कैप्सूल है। द लॉज which how you can affect is different from someone else, ठीक है। सेशन में था तो मैं यूजुअली 5 घंटे सोता हूँ, ठीक है, अभी थोड़ा सा ज़्यादा हो गई छुट्टियों में, 5 घंटे सोता हूँ, तो मेरे साथ वाले ने पूछा सर ये 5 घंटे सोता है, ठीक है, इसकी हेल्थ पे इफेक्ट नहीं होगा क्या, ठीक है, तो उसको वो एलएलबी के ने चका के ना, देखो राहुल गांधी कितना सोता है, ठीक है, मोदी कितना सोता है, उससे डजंट मैटर, तुम अपनी हेल्थ को देखो और उस हिसाब से काम करो। If he is sleeping 5 hours, his body is cope up with it, ठीक है, तो let it go as it goes। तो मैं जो कहूँ वो आप पे करना जरूरी नहीं है, बट इन जेनरिक जो लॉस है, इन जेनरिक जो कुदरत का निजाम है, मैं वो बता रहा हूँ, वही अगर आप इम्प्लीमेंट कर ले अपनी लाइफ में तो फिर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है सर। स्टार्ट, राइट। द फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ intentionality. What do you mean by intentionality? जी सर,
Intention. What do you mean by intention? The plan that you make within yourself. What is it? The plan or something that you know. Plan for yourself. अच्छा बुखारी शरीफ की पहली हदीस क्या है? Very good. Everything which you do is based on your नियत, intention. ठीक है? अल्लाह ताला जो है ना आपके नियत के हिसाब से आपको अजर देने वाला है। आपके अमाल तो है ही है, उसका अभी वो आलिम साहब काफी लोग बोलते हैं कि अगर हज का नियत किया नहीं जा सका तो नियत के हिसाब से उसका अजर। अल्लाह ताला ये नहीं बोलेगा कि जो है ना 5 लाख नमाज कौन पढ़े अल्लाह जन्नत में चलो, 4 हज कौन करे अल्लाह जन्नत में चलो, रोजे कौन रहे जन्नत नहीं। Life in this world is based on the quantity. दुनिया में जो है ना आपको जो रिजल्ट जो दिखेगा वो क्वांटिटी, यानी आप भाई मैं जो है ना पूरी रात जग के पढ़ा, पूरा साल पढ़ा, मगर रिजल्ट में मैं फेल हो गया तो आप इंटरव्यू तक नहीं जा सकते। यू अंडरस्टैंड? हियर आप ये नहीं बोल सकते भाई मैं पूरी रात जग के पढ़ा, भाई रिजल्ट क्या है? पास है फेल? If you are pass, you are fail. If you are fail, you are out. आखिरत में अल्लाह ताला ये नहीं बोलता, क्वांटिटी नहीं देखेगा, वो क्वालिटी देखेगा। आपकी नीयत क्या है? तो लाइफ हियर आफ्टर द डिफरेंस इज योर इंटेंशन, हाउ यू आर इंटेंडिंग टू डू समथिंग। अब अगर कोई ये न करे कि जो है ना अगर जो यहाँ पे जन को अगर आपको कहूं कि आप अगर अपने बच्चे को इंजीनियर बनाएं ये नियत से कि ये बच्चा कल के दिन दीन इस्लाम का नाम रोशन करेगा, तो एक एक दिन एक एक लम्हा जो आप उस पर डाल रहे वो सवाल है। अगर कोई दूसरा ये कहे कि जो ना ये इंजीनियर बनेगा, मेरा नाम करेगा और खूब पैसे कमाएगा, तो उसको मिलता, बट आखिरत में नहीं मिलता। सो ऑल इट इज बेस्ड ऑन योर इंटेंशन। So the law of intention says growth doesn't happen just. Growth doesn't happen just. शिफ्ट किया वो अच्छी बात बोला सर। वो क्या बोला कि जो है ना जो वीड्स होते ना, वीड को तो मालूम है, वीड को तो उसको क्या बोलते हैं? घास। ठीक है, जो जंगली घास है, घास जो है ना ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाती है। मगर एक चावल का अगर दाना अगर आप डालें जमीन में और उसको पैदा करके बड़ा करते हो, दैट नीड्स इंटेंशन एंड एफर्ट्स। वो जो है ना ग्रोथ ऑटोमेटिकली नहीं होती। तो ग्रोथ डजंट हैपन जस्ट। ठीक है, तो what he says, the law says growth doesn't happen just. Are you agree with this? Yes. ठीक है, जो अच्छाई है उसमें क्या है, अगर अच्छी बात बोले तो उसको सींचना पड़ता, और बुराई बहुत कहीं देखे आप कि जो है ना एक इंस्टीट्यूट है जहाँ चोरी करने के तरीके सिखा, कोई एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे जो है ना आपको झूठ बोलने के, धोखा देने के तरीके सिखा, नहीं सिखा। सेम लाइक वीड, द इविल ग्रोस, द इविल ग्रोस, बट द अच्छाई को बोलते ना, ठीक है, गुडनेस हैज टू बी कल्टीवेटेड। इसको बचा के रखना पड़ता, इसके पीछे नियत मकसद। घास कैसे उग जाए? अब आप एक चावल का जो ना अगर आप या आम का कोई भी आप दरख्त उगाना है तो उसके पीछे फिर इंडेक्शन होना, उसके पानी देना और सूरज की रोशनी लगना, दूसरी चीजों को बचा, ये सारी चीजें इंडेक्शन। तो ग्रोथ हर कोई ये सोचे कि जो है ना ग्रोथ बस हो जाती है, वो
गलत है. Growth doesn't happen just, okay, it has intention. Now, this is what a question is, okay, do you have a growth plan? सब किसी के पास, what is the difference between growth and goal? ये दो चले हैं आपको. Growth and goal. Growth and goal. मैं इसको आगे और समझाऊंगा अच्छे तरीके से, but G-O-L-D. grow and goal. Growth and G-O-A-L. G-O-A-L, yes. G-R-O-W-T-H and G-O-A-L. What is the difference? Growth is inevitable. target where you have to achieve. Goal is a target, okay? Growth is inevitable. Growth is inevitable. Okay, fine. Can you in short अगर आप growth Growth is what you become. Goal is what you want to become. Okay, very good. Growth is what you become. Goal is what you want to become. In short, Unless Goal. there's no grow, and if there's no goal, you couldn't grow. okay, very good. Okay, goal is a short-term process. Growth is a long-term process. ठीक है? हर किसी के पास, ठीक है, गोल होगा कहीं ना कहीं दिमाग में या लिखे होंगे, बट ग्रोथ प्लान किसी के पास नहीं है, नहीं होता. क्यों? हम शॉर्ट टर्म सक्सेस के लिए, शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए, अल्टीमेटली व्हाट वी वांट फ्रॉम लाइफ, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. आमिर साहब से मेरी बात हो रही थी, तो वो जो है ना, जब मैं उनसे बात कर रहा था, वाकई ही वाज मोर फोकस्ड टुवर्ड्स ग्रोथ, नॉट गोल. अगर गोल रहेगा तो भाई पैसा कहाँ से आएगा? ठीक है, लेट अस डू इट इन मोर कमर्शियल वे, और होटल में करेंगे और ज़्यादा मार्केट में. That is a goal. That is a goal for earn. But he said that, okay, no, I want to do it for free so that it can become my growth process. मैं सिखाऊंगा, यहाँ से सीखेंगे, तो ताकि जब हम आगे जाएंगे और अच्छे लोगों को सिखाएंगे तो that becomes the growth. So अब ये सवाल ये है कि क्या किसी के पास ग्रोथ प्लान है, अल्टीमेटली what you want from life? नहीं है. तो आज का होमवर्क क्या है कि आपको आज रात में बैठ के ये लिखना है कि what do I want from this life. जब तक कि आपको वो नहीं है, फिर उसके ऊपर इंटेंशन नहीं है, तो फिर आप कुछ अचीव नहीं कर सकते. जैसा मैं सुबह में बोला थोड़ी देर पहले कि जो ना वंडरिंग, जनरलिटी और मीनिंगफुल स्पेसिफिक. अगर आप मीनिंगफुल स्पेसिफिक है, अब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करके आपका एक प्लान होगा साहब कि जो है ना, मैं पैरामाउंट हिल में आऊँगा और 10 बजे तक आऊँगा, ठीक है. नहीं तो फिर गाड़ी स्टार्ट करके अगर आप कहाँ जा रहे हैं, जाके तो देखिए, लोग क्या बोलते हैं, फिर पागल है कर, सही है ना. तो हर एक टारगेट होगा ना साहब, हर किसी का एक टारगेट होगा. गोल इज अ शॉर्ट टर्म टारगेट, बट ग्रोथ इज अ लॉन्ग टर्म टारगेट. तो आज का होमवर्क क्या है कि आप लोगों को अपना ग्रोथ लॉन्ग टर्म टारगेट, लेट अस से कि भाई मेरे को जिंदगी से क्या चाहिए, पैसा चाहिए तो फिर पैसे पे काम करो. आज के बाद फिर पैसे पे काम करो, ठीक है. हर चीज विच यू डू इज मनी. नहीं भाई मुझे जो है ना कौम की फलाह चाहिए, तो फिर आज के बाद जितने काम आप कर रहे हैं उसके पीछे इंटेंशन कौम की फलाह चाहिए. समझ में आई बात? Am I clear? So the first one is law of intentionality. Growth doesn't happen just, okay? It has to have a growth plan. Now there are some misconceptions. What do you mean by misconception? गलत फहमी. ओके, सिंपल एकदम गलत फहमी. लोग ये समझते हैं कि जो है ना, ये गलत फहमियां लोगों में पैदा है कि the assumption is, okay, that I will grow automatically. जैसा हम पहले बात कर चुके हैं कि जो है ना, आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली नहीं होती, ठीक है. It has to have a plan. सेकेंडली, नॉलेज. दूसरा आदमी ये कहता है कि भाई मेरे पास नॉलेज नहीं है. नॉलेज से मुराद बेसिकली पब्लिक क्या समझती? नॉलेज से मुराद बेसिकली पब्लिक डिग्री नहीं है. कोई ये कहता है कि भाई मेरे पास MBA नहीं है, कोई ये कहता है कि मेरे पास अच्छी सी जो है ना ग्रेजुएशन नहीं है, वगैरह वगैरह ये सब कहता है. टू ग्रो यू डोंट नीड अ क्वालिफिकेशन. Am I making sense?
Clear? Okay. The third one is the timing. It is वो हर चीज क्या कहते हैं? अरे भाई अभी कहाँ उम्र हो गई, या अभी शादी का टाइम है, या अभी ग्रेजुएशन खत्म होने दो, या संडे है, कल सुबह उठ के फ्रेश में नहा धो के स्टार्ट करो, उसे उसी वक्त शुरू कर देना चाहिए। अगर जितना आप उसको टालेंगे, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, वो कांग्रेस बड़ा जबरदस्त काम करती है इस पे। आई एम नॉट फ्रॉम एनी पार्टी बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, ओके, दे वर्क ऑन अ प्रोसेस कॉल्ड लॉ ऑफ पोस्टपोनमेंट। क्या है? लॉ ऑफ पोस्टपोनमेंट। चीजों को टालो 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 टालो, उसके बाद पब्लिक भूल जाती। कितने दिन याद रखेंगे कोई मुद्दा? कितना टाइम याद रखेंगे? ना यस ना नो। आज में कल में परसों और फिर शादी है, या फिर अपने को बाहर जाना है, या एग्जाम है, या फिर जो है ना अभी मौसम ठीक भी है, टालते 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 जब वक्त चले जाता तो तब एहसास होता। जिंदगी में तो एक सवाल है, सबसे कीमती चीज क्या है? व्हाट इज द मोस्ट रिग्रेटेबल थिंग इन आवर लाइफ? जिंदगी में, किसी की जिंदगी क्या क्या सबसे बड़ा रिग्रेट हो सकता है? सबसे बड़ा जो रिग्रेट है वो टाइम। वक्त एक बार चला गया, नेवर पैसा आता, अगर जवानी भी गई तो हम वो भी आ सकती थोड़ी बहुत। वक्त जो गया ना, ठीक है, इज्जत भी अगर आपकी जाए तो शायद इज्जत भी वापस आ सकती है अगर आप अच्छे मान करके, मगर वक्त जो गया ना, वो वक्त बिल्कुल भी वापस नहीं आ सकता। सो द टाइम टू वर्क ऑन योर ग्रोथ प्लान इज नाउ। अगर आज नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, तो फिर जो है ना कभी नहीं। वो पूरा प्लान में जो ना मैं अच्छा प्लान करके सुबह उठ के उसी वक्त आप अगर करेंगे तो हो सकता है। तीसरा जो है मिस्टेक। अब ये सोचते कि भाई अगर मैं गलत हो गया तो, अगर मैं खराब हो गया, अगर ये जो मैं एक्शन कर रहा हूँ शायद अगर इससे मिस्टेक हो गया तो मिस्टेक्स होता है। जॉन मैक्सवेल की एक और अच्छी बुक है, वो कहता है कि जिंदगी में कभी जो है ना कोई नाकामयाब नहीं, समटाइम्स वी विन समटाइम्स वी लूज। जिंदगी में या तो जीत होती है या तो सीख होती है, हार कभी भी नहीं। मिस्टेक्स अगर करेंगे, ठीक है, अभी देखो साहब एक मैं बात बोलता हूँ, ठीक है, हम जैसे जैसे जिंदगी में बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे हमारा जो है ना वी ट्राई टू बी मोर मैच्योर एंड मोर प्रोफेशनल। On the contrary, we are killing our kid inside. जो अल्लाह ताला निज़ाम बनाया है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, सीखने का, उसको हम मार रहे हैं। अभी आप कितने लोग अभी थोड़े से यंग है, मगर तकरीबन लोगों के पास शादीशुदा है, बच्चे अभी आपके बेटे को जब वो चल रहा था, चांस देगा 50 चांस बेटा, 50 चांस में चलना, अगर नहीं चला कितने चांस दिए, कितने बार गिरा, कितने बार उठा, कि वो गिरना एक मिस्टेक है ना, कितने बार मिस्टेक नहीं किया, और हर मिस्टेक पे आप उसको क्या करें, सराहें, आप उसको अप्रिशिएट करें। मिस्टेक पे कभी पागल है यार, एक बार गिरे ना हम दूसरी बार फिर सीधा चलना नहीं मालूम। आप वही बच्चा जैसा जैसा बड़ा होते गया वैसा वैसा उसको टॉन्ट करते गए, बेवकूफ है, समझ में नहीं आ रहा, एक बार बोलने दी तो अब उसमें क्या है, तो बच्चा सीखने के बदले और पीछे हटते रहते। मैं क्यों करूं भाई, मैं इधर गया, जाके पानी रखा या किसी से बात किया, गलत हुआ, वालिद साहब गुस्सा कर, उससे बदले तब जाओ ही नहीं, उससे एक बार बोलते दो बार बोलते। तो द मिस्टेक शुड नॉट फील अशेम। कोई भी जो है ना, वो हैदराबाद में मशहूर कहावत है, माँ के पेट से कोई सीख के नहीं। तो वी ऑल आर हियर, वी आर बाउंड टू मेक मिस्टेक। क्या है हदीस सब, कुल्लु बनी आदम ठीक है, हर बनी आदम के साथ खता का है, खैर पता होना इल्लत तौबा, जो तौबा किया, ठीक है, वो जो है ना बेहतर है। तो तौबा क्या है, तौबा क्या है, जो आप मिस्टेक करें उसको रेक्टिफाई करके, हर बनी आदम के साथ खता कर, हम खामोश नहीं बैठे, उसके बाद क्या बोले, फिर तौबा करो और फिर वो काम करो, आप उसको
अच्छे से करो। तो जिंदगी में आप आगे बढ़ना है, ग्रोथ करना है। शायद आप एक स्टूडेंट है, आपने गलत ऑप्शन ले लिया, इंजीनियरिंग मेरी बस की बात नहीं है, मैं ले लिया। अब आप ले लिया तो अब उसको ठीक नहीं करना, ठीक करना, ठीक कैसे करना। अब आप हंसता है, भटक गए तो क्या करते हैं आप? फौरी जैसे कॉन्शियस में आते हैं, भाई चलो सेट कर लेंगे। अब आप गलती हो गई, एहसास हो गया, मिस्टेक यू हैव डन, नाउ यू हैव टू कम बैक और चेंज द रूल। इफ नॉट नाउ देन नेवर, मिस्टेक। क्लियर है सब? अच्छा, और ये क्या है? परफेक्शन। अब हर कोई क्या बोलता है कि ना एकदम हैंडसम हम जितना एकदम हर काम परफेक्शन, कोई भी काम परफेक्ट नहीं है, हर काम इम्परफेक्टली स्टार्टेड एंड फिनिश इट विद इम्परफेक्शन एज वेल। हर चीज में देखिए आप परफेक्शन की, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इट। अगर वो स्टीव जॉब का एक जो है ना मशहूर कहावत है, मशहूर जो है ना उसका वो जब जो है ना उसको फोन आईफोन बना के बिक दिए थे, ठीक है, स्टीव जॉब ने वो फोन लिया और सीधे उसको पानी में डाल दिया, ग्लास ऑफ वाटर था उसको पानी में डाल के जो है ना जैसे बबल्स निकले, बोला कि जो है ना देयर इज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, थोड़ा सा खाली जगह है, उसको भरो या उसको खत्म करो। तो परफेक्ट अगर आप होंगे तो परफेक्ट कभी भी नहीं हो सकते। परफेक्ट सिर्फ जो है ना उनसे बेहतर कोई परफेक्शन नहीं। भाई के सारे जितने लोग हैं वे ऑल आर इम्परफेक्ट, ठीक है। परफेक्शन के चक्कर में ना जाए। जो कोई भी चीज है आप शुरू करें। वो कहते हैं जबरदस्त शेर, तालीम दी नहीं जाती परिंदों, तालीम दी नहीं जाती उड़ानों की परिंदों को, वो खुद ही तय करते हैं ऊंचाई आसमानों की, ठीक है। जो जाना चाहते हैं मंजिल तक उन्हें खौफ नहीं होता, मैं थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है। वो जो जाना चाहते हैं ऊपर, वो उन्हें डर नहीं है गिरने की, ऐसा कुछ सेंटेंस। तो इन शॉर्ट ये बोल रहा हूँ कि परफेक्शन will never happen. So whatever you have it, with that resources start करते हैं, ठीक है। अब वो अब रिकॉर्डिंग करना है तो DSLR कैमरा होना, ठीक है। अगर जो है ना अच्छा सेशन होना है तो नाइस एनवायरनमेंट होना, ठीक है। इतना सब सारी जो है बस उससे स्टार्ट कर दें, अल्लाह ताला आपको जो है ना और आगे होगा। थर्ड है उसके बाद है इंस्पिरेशन, ठीक है। आई डोंट फील लाइक ग्रोइंग। कितने लोगों को जो है ना ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट ये है कि अरे भाई कई सारे इंजीनियर्स है, तालीम मिल रहे हैं, मैं करके क्या करूं? नहीं देखे वो जो है ना डब्बे में बैठे हुआ है, नहीं देखे वो किराने की दुकान पे बैठे हुआ है कई सारे इंजीनियर। अभी इसमें क्या होगा कि जो है ना इंजीनियर तो आप बन जाएंगे, डॉक्टर तो आप बन जाएंगे। एक डॉक्टर को 50 रुपए की प्रैक्टिस करना, दूसरा डॉक्टर को 5000 दोनों डॉक्टर ही कहेंगे ना, एक को बार्बर को नहीं कहेंगे ना, एक को हजम को नहीं कहेंगे, दोनों को क्या कहेंगे? डॉक्टर। दोनों के पास एक ही डिग्री है, डॉक्टर। बट व्हाट यू डू इज नॉट इम्पोर्टेंट, हाउ यू डू इज इम्पोर्टेंट। अगर आप ये कहेंगे जो ना, आप बहुत सारे लोग हैं जो हमारा इंजीनियर है खाली है, और बहुत सारे लोग हैं वही कॉलेज से करे, वही साथ में बैठे, बट दे डू समथिंग डिफरेंट, देन दे बिकम समथिंग वेरी गुड। तो इंस्पिरेशन का एक है। तीसरा है तो कंपैरिजन का है, ठीक है। अदर्स आर बेटर देन आई। ये जो है ना कभी भी अपनी जिंदगी में आप कितने ही बड़े हो जाएं या कितने भी जो है ना काबिल हो जाए, कभी भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करें। दिस इज अ कॉमन थॉट व्हिच इज गोइंग ऑन इन द फेसबुक और सब सारे चीजों पे चल रहा है। ये जो है ना कभी भी, जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बोला कि जो है ना वो 4 घंटे सोया, वो 5 घंटे सोया, डोंट कंपेयर। व्हाट यू डू इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी हमारे पास जो होना चाहे वो जितने लोग है, ठीक है, या तो दोस्तों से कंपेयर, या तो बहनों से कंपेयर, या तो पड़ोसियों से कंपेयर, किसी और से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। द मोमेंट यू कंपेयर देन यू विल स्टार्ट डाउनग्रेड, ठीक है। अब उन्हें अच्छा है, उन्हें कर ले सकता है, उसको क्या है भाई, वालदैन है जबरदस्त, चलो उसको क्या है, भाया है, बाहर से वीजा भेजते चले जाता हूँ, ठीक है। जैसे ही अगर आप ये सारी चीजें करें, ठीक है, देन यू विल हैव अ प्रॉब्लम। देन एक्सपेक्टेशन, कोई भी चीज आप ये सोचते हैं कि जो हमारा जिंदगी में चीजें आसान होगी, मगर आसान कोई चीज नहीं है।
नथिंग कम्स इजी। आपको जो है ना उसके लिए तकलीफ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही आप क्या करते हैं कि कोई चीज स्टार्ट करते और जो थोड़ा सा मुश्किल आते ही आपको ग्रोथ प्लान स्कूल से जो है ना जबरदस्त मौसम है, आराम से जो है ना 1-2 घंटे संडे है, 1-2 घंटे सो के उठेंगे, उसके बाद जो है ना जाके, तो इट इज नॉट ऑलवेज इजी, ठीक है सर। इस पे अब ये खत्म हो रहा, होम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, सो एज यू, अब अगर आपका ग्रोथ प्लान होना जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, जिंदगी जीने के लिए। अभी जो है ना ये चंद सवालात है, अगर आप क्विकली अगर आप अभी इसके जवाब आप देख सकते हैं तो लिखिए, नहीं तो जो है ना इसको हम बाद में दें। मैं स्लाइड सारे जो है ना आपको दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट द स्लाइड्स, ठीक है। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट आई एम सेइंग, ट्राई टू रिलेट इट टू योर ओन लाइफ एंड सी हाउ यू कैन डू इट बेटर। क्विकली अगर किसी के पास कुछ सवाल है या अगर कोई अभी इसके जवाब लिख सकते हैं, इजी है, नहीं तो फिर शाम में बैठ के इस पे थोड़ा सा काम करना चाहिए। 8 घंटे जब आप इधर डालें ना, 2 घंटे आज शाम में कैसे भी दाम, या नहीं तो कल सुबह, अगर आज शाम में नहीं कर सकते हैं तो कल सुबह। जी सर, कुछ सवाल है इस पे या कोई चीज समझ नहीं आ रही या आपके पास आंसर है आप शेयर करना चाह रहे हैं? आगे बढ़ेंगे या कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? आगे बढ़ेंगे, कोई सवाल है? ठीक है, Sir, question. How long will it take to find direction? If it doesn't know in which direction am I going? In which direction am I going? सही। Or am I taking the right direction? अब डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करना है? डायरेक्शन वही कह रहा हूँ ना, डायरेक्शन आपके ग्रोथ प्लान के ऊपर डिपेंड है, आप जिंदगी में क्या चाह रहे हैं, फिर उस हिसाब से डायरेक्शन चूज करें। पहले देखिए आप ये क्या नाम है आपका, आप सामने आगे तो बेहतर, आप और आप सामने आगे तो आप जेल सामने देखिए, नहीं आपको थोड़ा सा जाऊँ ताकि मेरा पेट्रोल बचे या ट्रैफिक ना मिले, या मेरे को बस एंजॉयमेंट के लिए, रिलैक्सेशन के लिए जाना है, किसी को पिक करने के लिए 3 घंटे है तो मुझे आराम से जाना, तो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर डायरेक्शन जो है ना आपको अपने आप पे चूज करना है किधर। अच्छा, अब डायरेक्शंस पे, ठीक है, जब आप जाते जाते, ठीक है, तो यू हैव टू सेट ऑल KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। आपको KPI किसको पता है? सबको की परफॉर्मेंस, यू हैव टू सेट KPIs। KPIs कैसा सेट होता? यहाँ पे नहीं है, अगर आप बाहर जाएं तो ना अगर कोई सऊदी रिटर्न है तब कोई सऊदी से जाते हैं, क्या होता कि रियाद से जिद्दा अगर आप बोले तो वो 1000 किलोमीटर है, रियाद से जिद्दा का जो डिस्टेंस है 1000 किलोमीटर। जब आप रोड पे जाए, ठीक है, तो वहां पे लिखा जाता है जिद्दा 1000 किलोमीटर, ठीक है। 1 घंटे के बाद आप जाए तो वैसे ही एक बोर्ड दिखेगा जिद्दा 900 किलोमीटर। तो जब ये बोर्ड देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं 1 घंटे में 100 kilometers are, which is a good speed. Secondly, I'm going on the right direction. Thirdly, अभी 900 किलोमीटर में कितने टाइम में पहुंचूंगा? Fourthly, मैं कहाँ रुकना चाहिए मुझे कितने टाइम के बाद, यानी गाड़ी की तो थोड़ी सी ठंडी होना है, तो these are all the KPIs on direction. तो जैसे आप ग्रोथ प्लान बनाएं कि भाई मेरे को अल्टीमेटली क्या चाहिए, फिर उसके बाद आप एक डायरेक्शन सेट करें, डायरेक्शंस के बाद आप KPI सेट करें कि भाई ये महीने में मुझे ये सारे चीजें करना है। अगर आप वो कर लें तो फिर उसके बाद, अच्छा एक चीज और है, थोड़ा सा मौजूद से हट रही, हम इबादत क्यों करते सब? Why do we do? अल्लाह का हुक्म है, ये तो कॉमन है जी, अल्लाह को राज़ी करने, अल्लाह का हुक्म है, ये तो ठीक है। और एक चीज जन्नत में जाने, ठीक है। और बेसिक क्रक्स अगर आप बोले, क्रक्स दिल का इत्मीनान,
नहीं नहीं, दिल का इतना से क्रैक्स अगर आप बोले तो मैं आपको अगर इसका जवाब दूंगा आप उससे ना इत्तेफाक नहीं करेंगे। द क्रैक्स इज वी आर अकाउंटेबल। अल्लाह ताला हिसाब किताब लेने वाला है, इसीलिए करे। अगर हिसाब किताब नहीं है तो अरे अल्लाह ताला प्लीज फरमानी ममता रखिएगा क्या है, क्योंकि हम अकाउंटेबल हैं, इसीलिए हम ये सारी चीजें करते हैं। अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह का हुक्म है, दिस आर ऑल ओके, बट एट द सेम टाइम वी आर अकाउंटेबल। अगर आप अकाउंटेबल नहीं हैं कोई भी चीज के, अपनी जिंदगी के, अपनी गाड़ी के, अपनी हेल्थ के, तो फिर क्या होगा? लाइफ ऐसे चलेगा, विल नॉट हैव डायरेक्शन। क्लियर सब? बात समझ में आई? सवाल है कुछ इस पे? नहीं है ना? जी? How long will it take? How far you have to go? That is the question. अगर आप वो हिंदी में कहते हैं क्षेत्रीय लेवल पे अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो छोटा टाइम लगेगा। अगर आप राष्ट्रीय लेवल पे कुछ काम करना चाहते हैं, अगर आप जी, अगर आप इंटरनेशनल, how long will it take? You cannot define. That you have to set. अब जैसा कि मैं बोला ना, वो KPIs, वो जो बोर्ड थे ना, जितना 1000 किलोमीटर, जितना 900, that is KPIs. अगर जब तक आप वो KPIs अपनी लाइफ में सेट नहीं करेंगे और अगर आप देखेंगे नहीं, तो फिर आपको जो है ना अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी, then you don't know. डायरेक्शंस पे एक और एक चीज अच्छी है साहब, थोड़ा सा क्रॉस टॉक में आप थोड़ा सामने आ जाए बेटर है। आपको मैं यूजुअली क्या करता हूँ कि मेरे सेशंस में मैं दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी को बात हरगिज़ नहीं बिठाता। तो क्या है कि वो लेक्चर के बाद और एक अपना लेक्चर सब तारीफ होंगे जिसके बारे में पूरा मालूम, तो बालूदारे शहबाज भाई इसके बारे में तो वो हाँ वही सॉर्ट आउट। आप इधर आ जाए सब, आप इधर आ, ठीक है? ये ह्यूमन टेंडेंसी है हमारा, ठीक है? जैसे ही कुछ बोलते हैं जो है ना, ये अरे ये इनके बारे में, ये इनके बारे में, ठीक है, बड़ी अच्छा। डायरेक्शंस पे एलिस इन द वंडरलैंड मालूम है क्या है? पिक्चर है एलिस इन द वंडरलैंड में। जब एलिस वंडरलैंड में पहुंचती तो वो चेशर कैट से पूछती, और वहां पे जाने के बाद काफी सारे रास्ते वगैरह आते हैं, तो वो पूछती कि जो ना which way should I go? Which way should I go? So the cat asked, where do you want to go? Where do you want to go? This, Alice replies, I don't know where I have to go. Cat really like that. Then it doesn't matter which direction you go. अगर आपको कहाँ जाना है ये नहीं मालूम, ठीक है, तो कौन सा रास्ता है? कहाँ पहुंचे? कहीं भी पहुंच जाएंगे। जिंदगी क्या है? अब वो फिर दो कॉन्सेप्ट आते हैं। एक कॉन्सेप्ट है जब मर जाना है काहे करना, जब अब क्या कुछ हर चीज मरना ही है ना भाई, काहे के लिए इतना चीज चेक करो? अल्लाह ताला बोला कि मैं तेरे रिस्क का जो ना मैं टेक केयर ऑफ यू। ब्लू व्हेल को 40 टन मच्छी दे रहा करते, कभी बाहर निकल के बोली नहीं आप हंगरी हो, कभी बाहर निकल के इकोनॉमिक क्राइसिस में बोली, कभी जो ना रिसेशन में हुई, हर दिन 40 टन, कभी डेटिंग पे भी नहीं गई बेचारी, 40 टन हर दिन दे रहा था, आपको नहीं देता। तो जब मर ही जाना है तो क्यों करना है? फिर जिंदगी का एक दूसरा एस्पेक्ट होगा, क्योंकि मर ही जाना है इसीलिए कुछ, क्योंकि मर ही जाना है इसीलिए। तो नाउ यू हैव टू डिसाइड कि ग्रोथ प्लान में मैं मरने के बाद यूजुअली क्या होता कि द गैप इज मैक्सिमम 100 इयर्स। रिमेम्बरेंस गैप इज 100 इयर्स। कितना? मैं, मेरा वालिद साहब और मेरे दादा उतना ही याद रखते, परदादा को बहुत कम लोग लिखते हैं या उनके बारे में सुनते। अगर वो परदादा जिंदगी में कुछ कर जाए तो फिर दैट विल रिमेन अल्लाह माता कितने लोग जाने से वाला गाड़ी में नहीं, कितने बुक्स लिखे सब अल्लाह माता अंदाज
अंदाजा कितने बुक्स लिखे हैं? 9.5 बुक लिखे, 9 बुक्स लिखे, दादा जो है ना किताबचा लिखे। अल्लामा इकबाल के किताबों पे लिखे जाने वाली किताबें कितनी हैं जी? अंदाजा 100 मोर देन 10,000 बुक्स उनके किताबों पे लिखी जाती। जैसा कि खुदी को खर बुलंद इतना, यानी अब खुदी को लेके बुक लिख दी, समझ? तो मोर देन 10,000 क्रॉसिंग शेक्सपियर, रियली क्रॉसिंग शेक्सपियर, क्योंकि उर्दू का जो तकरीबन जो लिखा गया वो उर्दू में लिखा गया, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं होता, ISBN नंबर नहीं होता, तो इसीलिए जो है ना उसको वेरीफाई नहीं करता। तो अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं कि मैं आज जो भी हूँ वो मेरे उस्ताद मोहतरम, उस्ताद उनके मोहसिन अली साहब है और एक भी दूसरे उस्ताद मोहतरम की वजह से हूँ। अलमिया ये है कि मेरे उस्ताद मुझसे मेरे पैदा होने से 650 साल पहले पता। You understand? Whatever I am today is because of my teacher. The irony is, the day I was born, he died more than 650 years before my birth. जिनका नाम है जलालुद्दीन रूमी साहब। जलालुद्दीन रूमी साहब के बुक्स पढ़ के, उनकी चीजें सुन के अल्लामा इकबाल ट्रांसफॉर्मेशन हुए। अल्लामा इकबाल के बुक्स लिखने के बाद 10,500 दिस व्हाट इट इज कॉल्ड लेगेसी। अगर आप दुनिया में आए और कुछ अच्छा काम कर रहे तो 950 साल बाद एक शागिर्द पैदा होगा जो 9.5 बुक लिखेंगे, 650 साल के बाद जो 9.5 बुक लिखेगा और उस पर लिखी जाने वाली 10,500 किताबें। तो दिस इज व्हाट द लेगेसी इज। दुनिया में आए हैं तो जुड़ना बिल्कुल चेंज होगा। दिस व्हाट हाउ लॉन्ग विल इट टेक। क्लियर है सब? बात समझ में आई? ठीक है। अभी जो है ना ये डू इट नाउ का जो है ना एक कॉन्सेप्ट है जो जॉन मैक्सवेल काफी प्रीच करता है, और इसको जो है ना एक ऑथर ने ये कहा है कि जब कभी भी आप सुबह में उठे ना तो अपनी बॉडी कंडीशन करना। कंडीशन क्या? थ्योरेटिकल, जैसा आप बोले ना कि थ्योरी नहीं, इट इज मोर प्रैक्टिकल। जैसे उठे के ऊपर बोला कि डू इट नाउ, डू इट नाउ, डू इट नाउ, डू इट नाउ, डू इट नाउ 50 बार बोलो, 50 बार बोलो। जैसे उठते आप दुआ पढ़े, अस्कार पढ़े, उसके बाद जो है ना डू इट नाउ, 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 डू इट नाउ 50 बार जैसे आप बोलेंगे आपके पास इंटरनल एनर्जी आएगी जब आप चीजों को टालेंगे नहीं और इंस्टेंटली जब ही करेंगे। ठीक है। ये फियर के ऊपर चंद चीजें हैं, जरा कोई ले जाएंगे। फियर फैक्टर, fear of failure, fear of failing security, fear of being overextended of resources, fear of what others think, fear of pursuing others. ये कॉमन चीजें हैं, आपको जो है ना इजीली समझ में आती, मगर जो है ना आप अभी से इसमें पढ़ें और जो है ना कुछ सवाल हमको पूछें आप, फिर मैं आपको। We all come across some decisions, some important decisions. Right. So I have a fear of regression. Like why I might think that certain decision I would make, which will make me feel regret. Like people suggest things like we don't know what would come after the decision. Right. Like we have to choose either this path or that path. But at that time, what we should do? देखो डिसीजंस कभी भी लेने का होना है, मेडिटेशन में कोई का सेशन है, डिसीजंस कभी भी सही और गलत में नहीं लिए जाते, लिए जाते सही और गलत तो इजी है ना, गलत गलत ही है, सही सही है, सिगरेट पीना सही है गलत है, इजी डिसीजन है, गलत है भाई। प्रॉब्लम कब आता है? अच्छा और बेहतर में प्रॉब्लम है डिसीजन, ठीक है। राइट और रॉन्ग में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता। गुड एंड बेटर जब डिसीजन आएगा तब प्रॉब्लम होगा। तो उस टाइम पे सबसे बेहतरीन चीज तो बताना है, आप बताना चाहिए उसके बाद जो है ना लोगों से मशवरा करें, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इस्तिखारा किया वो नाकामयाब नहीं और जो मशवरा किया वो शर्मिंदा नहीं। अच्छा, अब मशवरा जो है, ठीक है, अब वो अल्लाह माफ करे पांडवी वाले के पास, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट,
पान की दुकान खोलना है तो उसके पास आके पूछना चाहिए। अगर आपको इंजीनियरिंग करना है, शादी करना है या बाहर जाना है, तो हम अक्सर क्या करते हैं, हमारे सर्कल वालों के लोगों से जाकर पूछते, जबकि जो है ना वो डिसीजन लेते। यू हैव टू फाइंड द पीपल दोज हु कैन रियली हेल्प यू, जो आप उनकी फील्ड है या वो करे हैं या वो गए। अब अगर मैं सऊदी के बारे में जाके अगर मैं कोई अमेरिकन रिटर्न से जाके पूछूं तो भले ही वो मेरा अच्छा दोस्त हो, वो मेरे को सही गाइड नहीं कर सकता। ठीक है, वो ओवरऑल बोलेगा बाहर की लाइफ कैसी होती, बट इज इंटायरली ठीक है। तो आप जो है ना जब कोई डिसीजन लेते हो, नंबर 2 मशवरा, फिर नंबर 3 आप जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पेन पेपर लेके बैठना, दिमाग से काम कुछ भी नहीं करेगा। Why? Because your mind doesn't have another mind to remind you. एक बार आप कर दिए, फिर उसके बाद दूसरी बार वो चीज आपके दिमाग से चलेगी, क्योंकि एक सेकेंड में 50 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपका जो है माइंड प्रोसेस करता है, तो उतनी जल्दी नहीं होता। तीसरी चीज जो है, पेन पेपर लेके आप बैठ जाएं और उसके हाफ पेज पे जो है ना आप डालें व्हाट इज राइट, और इससे मैं कहूँ तो क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। जब आप ये लेके 3 चीज करेंगे, इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह आपको जो है ना एक डिसीजन मेकिंग में अच्छा होगा। उसके बाद जो है ना फिर आप जैसे ही ये सारी चीजें करें, बस चलते जाना, आपको जो है ना सही हो सकता है और शायद डिसीजन गलत भी हो, मगर जो है ना अल्लाह ताला जब इतने सारी चीजें अगर आप होमवर्क कर लिए तो अल्लाह ताला आपको नाकामयाब नहीं करेगा। जी साहब, कुछ और सवाल या कुछ और एक्सप्लेनेशन ऑन दिस? वो सबसे बड़ा रोग क्या करेंगे लोग, क्या करेंगे लोग, दूसरे क्या कहते हैं, वो सबसे बड़ा रोग है। उसको क्या कहते हैं, शिव में क्या है, जब आप ऐसे ही कुछ काम गलत करते ना तो लोग जो है ना ज्यादा चिल्लाते, जब आप सही करते ना तो भी लोग चिल्लाते, अरे क्या कर दिया भाई ने, अरे आखिरी कर दिया भाई ने, खीरा हो गया तो भाई ने, अरे बोले काय कर रहे यार, बैठो वो भाषा करने वाले तो पहले भी चिल्लाते, बाद में भी चिल्लाते, मगर चिल्लाने में फर्क है। आप जो है ना जब तक अगर दूसरों के बारे में सोचो तो फिर अपने बारे में जो है ना, एक वो हम छोटी सी स्कूल में थे तो फोटोग्राफर का कुछ एक लेसन था, वो जब जाके एक आदमी फोटो लेने गया तो बोला कि जो तुम्हारी नाक अच्छी नहीं है, मैं नाक चेंज करता हूँ, आँख अच्छी नहीं है, आँख चेंज करता हूँ। तो जब फोटो निकल के आई तो वो था ही नहीं, क्योंकि हर चीज़ ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। तो हर किसी के पास, जैसा परफेक्शन के बारे में हम पढ़े, तो कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर कोई इम्परफेक्ट है, मगर जो है ना जैसे हमारे पास क्या है, जैसे ही कोई ऑड करता ना, अपने से हटके करता तो फिर पब्लिक को हजम नहीं होता, अरे कहीं क्यों कर रहा है, ठीक है। जब और वो आर्ट में ही कामयाबी, जब तक आप सेम चीज करते जाएंगे तो फिर कामयाबी नहीं। दूसरों के बारे में ना सोचें, बेहतर है अपने बारे में सोचें, अपने घर वालों के बारे में सोचें, हमारे स्टूडेंट्स के बारे में सोचें, वो जो आगे पढ़ेंगे, ठीक है जी साहब। और कुछ सवाल? फियर ऑफ खुशी। अब क्या होगा, छूट जाएंगे लोग, मेरे से छूट जाएंगे, ठीक है, दूर हो जाएंगे, या लोग मेरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लोग मेरे से दूर कर देंगे। अरे मैं अच्छा करा तो जो है ना छुड़ जाते दोस्तान छुड़ जाते। तो वो चीज अगर आप रखेंगे तो फिर कभी भी आप आगे नहीं बढ़ते। एक रॉकेट देखे साहब, रॉकेट, ठीक है, रॉकेट असेंबल करने में कितना टाइम लगता? 2 साल 3 साल 5 साल। तो उसको एक देखिए जो ना जॉइंट रहता है, वो जॉइंट जो ना साथ में रहता है। जब आप लॉन्च करते हैं कितने, अरे सर जीरो बोलते हुए, जीरो बोलते क्या करके में, जीरो बोलते क्या करके, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जीरो बोलते। अरे 5 साल से साथ है, 5 साल से साथ है, तो देर ना पड़े भाई, पहले तो ईमानदारी में जो बनी गया था, जीरो बोले, जीरो बोलते आप उसको पढ़े, जैसे ही ऊपर जाती तो फिर और क्या होती, और स्प्लिट। अब बोलो कि कई जमाने से साथ है ना, आपको अगर ऊपर जाना है तो साथ छोड़ना पड़ता, अगर उनके साथ ही नहीं
ताल्लुकात नहीं तोड़ो, ताल्लुकात नहीं तोड़ो, मगर साथ छोड़ो। अल्लाह ना करे, मैं एक बात बोल रहा हूँ, ठीक है, वो जो है ना, अगर कोई मेरा साथ वाला दोस्त है, आज अगर ऑटो चला रहा, अल्लाह ना करे उसकी जो है ना, तो ताल्लुकात नहीं तोड़ो, साथ रहो, मगर उसके साथ रहे तो फिर मैं भी ताल्लुकात ना तोड़ो, मगर साथ रहो। तो फियर ऑफ पुशिंग, लोग जो है ना मेरे साथ ताल्लुक तोड़ देंगे और जो है ना साथ छोड़ देंगे, ये सारी चीजें। और दूसरे सब सवाल आगे बढ़ेंगे। Fear of being overestimated or diseases. जी, Fear of being overestimated or diseases. अब जो कुछ भी चीजें हैं, आप उससे ये सोचते हैं कि जो है ना, या तो मेरे पास ये ज्यादा है या तो फिर मेरे पास ये कम है। चीजें छूट जाने का डर जिसे बोलते हैं, अरे आज है कल है, ताकि नहीं रहता है, कल का अगर सोचते रहे, ठीक है, या जो रिसोर्सेस है उसके बारे में अगर सोचते रहे तो फिर आप आगे नहीं जा सकते। आज गाड़ी है, कल है, थोड़ा लोगों के पास जितना आया उतना कर लो साहब, अरे अल्लाह आज भी दिया, कल भी दिया, उसकी जात से इतना नाम नहीं, आज है तो कल लेना, कल लेना। तो एक्सटेंडेड रिसोर्स जो कुछ भी है, या तो उसको छूटने का डर या तो उसको ना मिलने का डर नहीं, ठीक है। अच्छा, अब क्विक सवाल, अल्लाह ताला ऐसे कौन से फियर्स अपने को इनबॉर्न है? ये तो जो है ना पूरे बाहर की चीजें हैं और जो फेक है, ये सारी चीजें फेक है, राइट? ये सारी चीजें फेक है। इनबिल्ट फियर्स क्या है सर? फियर ऑफ गॉड, हाँ, फियर ऑफ गिल्ट, अल्लाह का डर, फियर ऑफ हाइट, और क्या है? फियर ऑफ आवाज। आवाज का डर, ओके, मौत का डर, गिल्ट का इनबिल्ट होगा, इनबिल्ट। बच्चे को गिल्ट का नहीं था, बिल्कुल डर है, पहले चॉकलेट उठाता खाता हूँ, क्या करना, आखिरत का डर बच्चे को नहीं रहता। इनबिल्ट बोल रहा हूँ मैं, इनबिल्ट जो एक छोटे बच्चे में। क्विकली 3 फियर, जैसा कि बोले, नंबर 1 फियर ऑफ हाइट, ये अल्लाह ताला इनबिल्ट फियर रखा है। जैसे ही हाइट देखते आप डर जाते हैं, बच्चे को ऊपर उछालते डर जाते, ठीक है, फियर ऑफ हाइट। दूसरा है फियर ऑफ साउंड, ठीक है, आवाज से बच्चा जो है ना डर जाता है। जो डॉक्टर है, डॉक्टर साहब है, बच्चा जब पैदा होता है ये सब फट टूट के मारते नहीं, सुनिए आ रहा, चमक रहा, नहीं चमक रहा, क्योंकि जैसे ही बच्चा चमका तो समझो उसके सेंसस पूरे काम कर रहे हैं, ठीक है। न्यूबॉर्न अगर आपके पास बच्चे में तो हम वीडियो टेस्ट करके देखते हैं। सेकंड इज साउंड, फियर ऑफ साउंड। थर्ड इज फियर ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेने में अगर आपको तकलीफ हुई तो आपको डर, बच्चे के लिए तो पानी अगर आप मिलाए उसको